سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے جتنے بھی بزنسز اس دنیا میں چل رہے ہیں تمام کے تمام دنیا کاروبار جو ہے وہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہمارے بزنسز کیسے رن ہو رہے ہیں، ہمیں ہمارے ہمارے آرڈر کہاں سے آئیں گے، کسٹمر کون ہوگا، ہم اسے کیسے پے بیک کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں کیسے پتہ چلیں گی، یہ اسی طرح سے پتہ چلیں گی کہ اگر ہم تمام بچوں کو، تمام جو بزنسز ہیں وہ اپنے کاروبار دنیا کو جو ہے وہ لے کر چلیں گے۔ اچھا، تو یہاں پہ میں تمام بچوں سے پھر ایک دفعہ، بلکہ یہ دنیا کاروبار جو ہے یہ چل رہا ہے ہماری اس بنیاد پہ کہ جناب آرڈر، اگر ہمیں کوئی چیز سیل کرنی ہے تو آرڈر کہاں سے آئے گا، ٹھیک ہے، وہ آرڈر کو ہم رسپانس کب کریں گے، کون سا مال کہاں پہ بیچنا ہے، وہ کتنی پرائس پہ بکے گا، اس سے ریونیو کیا اکٹھا ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں انفارمیشن ہی تو ہیں۔ لہٰذا دنیا کا کوئی بھی کاروبار، کوئی بھی بزنس بغیر انفارمیشن کے نہیں چل سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ انفارمیشن کے ساتھ زیادہ کنسرن کس کا ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں گے کہ انفارمیشن کے ساتھ زیادہ کنسرن کس کا ہے تو آپ کہیں گے سر 2 یا 3 ایسی امپورٹنٹ اینٹیز ہیں۔ ویسے تو ہر اینٹی جو بھی کاروبار میں انوالو ہے، ہر فرد، ہر شخص، اس کا انفارمیشن سے بہت گہرا تعلق ہے، اس کا معلومات سے بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم انفارمیشن جو ہے وہ نہیں ہوگی تو بزنس بھی رن نہیں ہو سکے گا، لہذا جو ہے بزنس بھی یا کاروبار بھی نہیں چل سکے گا۔ تو لہذا یہ بات کنفرم ہے کہ جو بھی بزنس ہے، جو بھی سچویشن ہے، اس کو جب آپ نے رن کرنا ہے تو یو مسٹ، کائنات گل، باقی بچے پلیز اپنا مائک آف کریں۔ میں کتنی دفعہ بیٹے آپ لوگوں کے بات یہ کر رہے تھے بھائی کہ جو سیل ہے، جو آرڈر ہے، پتہ تو تبھی چلیں گے نا جب انفارمیشن ملے گی۔ تو لہٰذا بزنس کی دنیا بغیر انفارمیشن کے نہیں چلتی۔ لہٰذا جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس چیپٹر میں ہم نے اپنے اس چیپٹر کو 3 حصوں میں بریک کیا تھا۔ ایک تھا فنڈامنٹل آف ورک پلیس کمیونیکیشن، ایک تھا افیکٹو بزنس میسج، اور ایک تھا اوور کم کمیونیکیشن چیلنجز۔ فی الحال ہم صرف اور صرف نمبر 1 پوزیشن پہ کام کر رہے تھے جو کہ چیپٹر کا ذرا چھوٹا پارٹ تھا، لیکن اس کے اندر بھی 7 ڈفرنٹ ٹاپکس تھے جس کے اندر ہم اس وقت تک انٹروڈکشن ٹو بزنس کمیونیکیشن کرا چکے ہیں، آرگنائزیشن کرا چکے ہیں، اسٹیک ہولڈر کرا چکے ہیں، اور آج ہم نے کرنا تھا انفارمیشن نیڈس آف آرگنائزیشن کے آرگنائزیشن کی انفارمیشن نیڈس کیا کیا ہیں اور وہ کیوں ضروری ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ انفارمیشن تو سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، تو بغیر انفارمیشن کے تو کوئی کاروبار چل ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا جب ہم بات کرتے ہیں کہ انفارمیشن نیڈ جو ہے آرگنائزیشن کی امپورٹنٹ ہے، تو اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے اس کا سب سے پہلا ایشو ہے کہ ہم سرمایہ کہاں سے ریز کریں گے، کیپٹل کہاں سے ریز کریں گے، ہم پیسہ کہاں سے ارن کریں گے، فرام ویئر وی میک دا منی۔ دیکھیے بزنس کے لیے ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے، بغیر انویسٹمنٹ کے بزنس نہیں چل سکتا، بغیر انویسٹمنٹ کے بزنس نہیں چل سکتا۔ ظاہر ہے را مٹیریل لانا ہے، ہمیں اکوپمنٹ خریدنا ہے، باقی چیزیں لانی ہے، تبھی ہم کوئی نیا پروجیکٹ یا کوئی نیا جو ہے وہ پلان امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا نیا پلان یا نیا پروجیکٹ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، لہٰذا کیپٹل کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے تو انفارمیشن کی ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی آرگنائزیشن کے لیے فائنینس کو کہاں سے ریز کرنا ہے، سرمایہ کو کہاں سے لانا ہے، اور یہ ساری کی ساری انفارمیشن ہے۔ کون سا بینک لون دے گا، شیئر سے پیسہ پیدا کرو گے یا تم جو ہے کسی ڈائریکٹر یا کسی بڑے انویسٹر سے بات کرو گے۔ پھر بات یہ ہے کہ جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ایک بزنس کو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بھی ملٹیپل ایوینیوز اویلیبل ہوتے ہیں۔ ایوینیوز کا مطلب ہوتا ہے کہ مختلف مواقع دستیاب ہوتے ہیں یا مختلف سورسز دستیاب ہوتے ہیں کہ ہم کس پہ پیسہ لگائیں گے۔ تو دیکھیے اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے پیپل۔ آپ پیسہ جو ہے وہ لوگوں پہ لگا سکتے ہیں۔ لوگوں پہ پیسہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ لوگوں کو ٹریننگ دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی ڈیولپمنٹ کی جا سکتی ہے۔ اگر اچھے لوگ ہوں گے ہماری آرگنائزیشن میں تو ظاہری بات ہے ہمارے پاس زیادہ سورسز ہوں گے، ہم زیادہ بہتر طریقے سے مینیج کر سکیں گے۔ پھر مشین ہے،
भाई मशीनें दस्तयाब होंगी तो ही कारोबार चलेगा, तो हम मशीन पे भी पैसा लगा सकते हैं, हम अपने इक्विपमेंट को लेटेस्ट कर सकते हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, हम नई फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, वी कैन सेटल न्यू फैक्ट्रीज, तो हम नई फैक्ट्रीज लगा सकते हैं। लिहाजा ये भी एक मामला है। तो पहला मामला सरमाया कहाँ से लाओगे, दूसरा मामला सरमाया लोगों की ट्रेनिंग पे लगाओगे, मशीनें खरीदोगे या नई फैक्ट्रीज लगाओगे। तीसरी चीज, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमने compete कैसे करना है मार्केट में। भाई मार्केट में compete करने के भी तो तरीके होते हैं ना। बाज कंपनीज क्या करती हैं कि मार्केट में compete करने के लिए बाज कंपनीज ये करती हैं कि वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती हैं, लेकिन प्राइस हाई रख लेती हैं। क्वालिटी हाई क्वालिटी, जैसे आपने देखा होगा जर्मनी की कंपनियां गाड़ियां बनाती हैं, इसमें BMW है, जिसके अंदर मर्सिडीज है। तो ये क्या करते हैं, ये गाड़ियां बनाते हैं, महंगी बनाते हैं, लेकिन क्वालिटी बड़ी ऊपर की देते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसी कंपनियां जो लो कास्ट गाड़ियां बनाती हैं और सस्ती बेच देती हैं, जैसे सुजुकी है ना जी। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है, सुजुकी भी कारोबार कर रहा है, मर्सिडीज भी कारोबार कर रहा है, BMW भी कारोबार कर रहा है। अब इसके बाद बाज कंपनीज हैं, वो प्रोडक्ट बनाती हैं पूरी मार्केट के लिए, जो मर्जी खरीदे। माचिस है, माचिस बनाते हैं, मैच बॉक्स बनाते हैं, पूरी मार्केट में जो मर्जी खरीदे, अमीर भी खरीदे, गरीब भी खरीदे, आम आदमी भी खरीदे, जिसने आग लगानी वो भी खरीदे, जिसने आग नहीं भी लगानी वो भी खरीदे। ठीक है, तो मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज होती। तो सबसे पहली बात, इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए भाई, कारोबार करना है, सरमाया कहाँ से आएगा। फिर इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए कि पैसा लगाना कहाँ पे है, लोगों पे लगाना है, मशीन पे लगाना है, नई फैक्ट्रीज बनानी है। और फिर इंफॉर्मेशन इसलिए चाहिए कि हम मुकाबला कैसे करें, क्वालिटी पे फोकस कर लें या लो कास्ट प्रोडक्ट बना लें, या हम मास मार्केट करें, यानी पूरी मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनाएं। तो भाई ये सारे फैसले किसकी बुनियाद पे होने हैं? ये सारे फैसले होने हैं इंफॉर्मेशन के मुताबिक। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन नीड्स, एक ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन नीड्स हैं, जरूरतें हैं। सरमाया कहाँ से आएगा, किस चीज पे लगाएंगे और किस तरह मार्केट में मुकाबला करेंगे। अब यहाँ पे जरूरत इस समर की है कि मैचिंग सवाल बच्चे ने भेजा मुझे कि मास मार्केटिंग क्या होती है। तो मास मार्केटिंग ये होती है कि जब हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे माचिस बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, और पूरी मार्केट को कहते हैं जो खरीदना चाहे खरीदे, इसे हम मास मार्केट कहते हैं। इसका मुतबादिल ये होता है कि हम प्रोडक्ट पूरी मार्केट के लिए ना बनाएं, बल्कि एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए बनाएं, जैसे कि एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए बनाएं। अब इसकी मिसाल मैं आपको क्या दे सकता हूँ कि देखिए दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सिर्फ रिच क्लास के लिए बनाए जाते हैं, जैसे रोलेक्स की घड़ी है। तो रोलेक्स की घड़ी मेरे और आपके लिए तो नहीं है। कितने की है रोलेक्स की घड़ी पाकिस्तान में? 6 लाख की होगी मेरा ख्याल है। तो 6 लाख की घड़ी आपने और मैंने तो नहीं पहननी, तो ये अमीर क्लास के लिए है। लेकिन बाज प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका इश्तहार हम देते हैं और अमीर और गरीब सब खरीदते हैं, इसको हम मास मार्केट कहते हैं। ठीक हो गया बच्चों। दूसरा जो सवाल था कैपिटल का, कैपिटल हम कहते हैं वो पैसा, वो मशीनें, वो टूल्स, वो गाड़ियां जो हमने कारोबार में पैसा कमाने के लिए लगाई हैं, वो कैपिटल है। यानी मेरे घर की गाड़ी जो है वो कैपिटल नहीं, वो कंज्यूमर गुड है। लेकिन वो गाड़ी जो येलो कैब बन गई या वो ऊबर पे चल रही है या क्रीम पे चल रही है, वो कैपिटल गुड है, क्योंकि वो सरमाया या पैसा कमा रही है। ठीक हो, समझ आ गई? कैपिटल, पीपल, मशीन। लेकिन बहुत सारे दुनिया में हम कारोबार करते हैं, हम जॉब्स करते हैं, एक बड़ा अहम कंसर्न होता है मालिकाने बिजनेस का, और वो कंसर्न ये होता है कि जो कारोबार का मकसद है, मिशन है, वो सबको समझ आ जाए कि हमारा मिशन क्या है। क्योंकि देखिए अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना है, फर्ज कीजिए कल आप चार्टेड अकाउंटेंट बन जाते हैं, आप ज्वाइन कर लेते हैं KPMG, ठीक है जी, अल्लाह करे। अच्छा, या आप ज्वाइन कर लेते हैं फॉरगोसन यानी PwC ज्वाइन कर लेते हैं, या हम अर्नेस्ट एंड यंग ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। हमें ये तो पता होना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है। जैसे आपकी जिंदगी का एक मकसद है, मेरी जिंदगी का एक मकसद है, इसी तरह कारोबार का भी एक मकसद है, ऑर्गेनाइजेशन का भी एक मकसद है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं उसका मिशन क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन का
बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ताकि हम जब उसमें काम करें तो हम उसके मिशन की तकमील में उनकी मदद कर सकें, उनके मिशन की तकमील में हम मदद कर सकें, हम उनके मामलात में उनको हेल्प आउट कर सकें, हम उनके मामलात में उनको सपोर्ट कर सकें। तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम इन मामलात में उनकी हेल्प कर सकें, उनको डील कर सकें, उनको समझ सकें। पीडब्ल्यूसी ज्वाइन कर ली, अर्नेस्ट एंड यंग ज्वाइन कर ली, टोयोटा या आपने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ज्वाइन कर ली। तो अच्छा भाई जरा मिशन तो बताएं, मिशन क्या है, ताकि उस मिशन के हासिल करने में आपकी मदद करें। तो मिशन क्या है जी? माइक्रोसॉफ्ट का मिशन है एक कंप्यूटर ऑन एवरी डेस्क इन एवरी होम। कि हमारा मकसद ये है कि हमने इतनी मेहनत करनी है, इतना अच्छा कंप्यूटर बनाना है कि हर घर में जो डेस्क पड़ा हुआ ना, उस पे हमारा कंप्यूटर होना चाहिए। अब आप उसके एम्प्लॉई हैं तो आप क्या करेंगे? आप मदद करेंगे उनकी कि आप उनको ये करके दिखाएं, आप इतनी क्वालिटी को अचीव करवा के दिखाएं। तो ये मकसद हो सकते हैं। अब सवाल ये आप पूछेंगे सर ऑब्जेक्टिव, भाई मिशन से आगे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे ना, तो आपका फिर ऑब्जेक्टिव होगा अच्छा भाई हमने सेल्स बढ़ानी है, अच्छा भाई हमने क्वालिटी बढ़ानी है, अच्छा भाई हमने टेक्नोलॉजी अपनी सबसे ऊपर लेके जानी है, हमारी टेक्नोलॉजी मोस्ट रिलायंट होनी चाहिए, या क्या होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए, ताकि हमारा कंप्यूटर सबसे ज्यादा बिके। तो ये बच्चों मिशन होता है। इसी तरह आपको समझ आ जाएगी कि हर बंदे का एक मिशन होता है। अच्छा आप पूछ सकते हैं सर बशर आप बताइए आपका क्या मिशन है? अच्छा जी, क्या मिशन है? मैंने एक दिन ऐसे ही सोचा यार इतना बड़ा हो गया हूँ, यानी अब तो मैं तकरीबन जवान लड़का लगता हूँ, तो मुझे ये तो पता हो मेरा मिशन क्या है। तो मैंने सोचा मेरा मिशन क्या है, तो एक दिन मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार मेरा मिशन हकीकत में ये है कि आई वांट टू सेटिस्फाई ऑल ऑफ माय स्टेक होल्डर, यानी सेटिस्फैक्शन ऑफ द स्टेक होल्डर इज माय मिशन, सेटिस्फैक्शन ऑफ द स्टेक होल्डर इज माय मिशन। अब स्टेक होल्डर क्या होते हैं? जिससे जिससे हमारा कंसर्न होता है, जो हमारे साथ वाबस्ता होते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? अल्लाह, जिसने मुझे पैदा किया। तो मेरा पहला मिशन उसको सेटिस्फाई करना। दूसरा मिशन मेरे पेरेंट्स, उनको सेटिस्फाई करना। तीसरा मिशन मेरे बीवी बच्चे, मैंने उन्हें सेटिस्फाई करना है। मेरे दोस्त अहबाब। तो ये मेरी जिंदगी का मकसद है। अच्छा उस मकसद के लिए फिर ऑब्जेक्टिव है कि मेरे वालिदैन की दवाई के लिए, अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए पैसे चाहिए तो मेहनत करनी चाहिए, ज्यादा पैसे कमाने चाहिए। अब ये मेरा ऑब्जेक्टिव है टू अर्न मोर मनी एंड मीट देयर नीड्स। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन है कि जी माइक्रोसॉफ्ट कहती है कि जनाब हम चाहते हैं कि हर घर में जो डेस्क पड़ा हो ना उस पर कंप्यूटर हमारा हो। तो भाई सेल ज्यादा चाहिए, ऑब्जेक्टिव ये हो गया। सेल ज्यादा चाहिए, क्वालिटी अच्छी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, टेक्नोलॉजी मोस्ट रिलायंट चाहिए, ड्यूरेबल चाहिए, फीचर सबसे ज्यादा चाहिए। अब ये सारी चीजें होंगी तो हम अपने मकसद को हासिल कर सकेंगे। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट। अब जब बात करते हैं हम कि जी जो भी ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप होती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप होती है, उनका सबसे पहला मकसद ये होता है डायरेक्टर्स का, मैनेजर्स का, कि भाई क्या करें। मकसद ये होता है कि हम ये करें कि जनाब तमाम जो डायरेक्टर्स हैं, तमाम जो लोग हैं, वो हमारे मिशन और ऑब्जेक्टिव को सिर्फ पढ़े ना समझें भी। तो हम क्या करते हैं? हम कोशिश करते हैं कि अपने ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजीज जो हैं कम्युनिकेट करते हैं तमाम ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को, एम्प्लॉयज को, कि लो भाई हमारा ये मिशन है, इसको समझो और इसको परसीव करो। इसी तरह सबसीक्वेंटली अगर आप देखते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि within the external to the organization should always appropriate context of organization objective while as accounting for need of various stakeholders। कि stakeholders की जो जो जरूरियात हैं वो एक्सटर्नल हैं, इंटरनल हैं, उन्हें जिंदगी का उन्हें ऑर्गेनाइजेशन का मकसद समझाया जाए, अपने ऑब्जेक्टिव और अपनी नीड्स के बारे में आगाह किया जाए और उनकी नीड्स के बारे में समझा जाए कि उनको हमारे से क्या चाहिए। अपनी नीड्स उनको बताई जाए और उनकी नीड्स को खुद समझा जाए, तो फिर हम कामयाब होते हैं। अब हम इस सारी बात को मुख्तसर करते हैं। हम मुख्तसर ये करते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मकसद है, मिशन है, उस मिशन के मुताबिक उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और वो ऑब्जेक्टिव्स उसके तमाम वाबस्ता लोग, स्टेक होल्डर से मुराद है वाबस्ता लोगों को पता होने चाहिए, ताकि उसे हासिल करने में मदद हासिल की जा सके उनसे। तो ये बच्चों यहाँ पे आके हम फिर आ रहा बोलता हूँ बात
दुनिया में जितने भी बड़े बड़े काम हुए हैं, एक दफा इंसान अपने दिल पे हाथ रख के सोचे कि वो कैसे हुए। तो आप ये कहेंगे सर जितने भी बड़े काम हुए ना सर, वो मंसूबा बंदी से हुए। किससे हुए? वो मंसूबा बंदी से हुए हैं। बगैर मंसूबा साजी के बड़े बड़े काम नहीं हो सकते, और हम इसे कहते हैं प्लानिंग। प्लानिंग करना यानी मंसूबा बनाना। तो ये बकायदा सफेद कागज पे लिख के कंपोज ऑफ करके हम बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज होगी प्लानिंग। तो प्लानिंग बच्चों, बगैर मंसूबा साजी के दुनिया में कोई काम नहीं होता। अगर एक अच्छी बिल्डिंग बनानी है, एक अच्छा कारोबार चलाना है, या आपने एक अच्छा कोर्स पास करना है, इवन सीए करना है आपने, सारे का सारा आपकी प्लानिंग पे बेस करता है कि आपने प्लान क्या किया। क्योंकि आप सब बच्चे प्रोफेशनल स्टडीज में आ चुके हैं, तो अब आप जो भी काम करेंगे ना इंशाल्लाह आने वाले दौर में भी, तो आप हमेशा ये चेक करेंगे कि इस काम को करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, हमारा इस रिसोर्सेज की मदद से क्या हम इन ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकते हैं। तो फिर आप तय करेंगे कि हाँ ये इसका रास्ता है। तो तीन बातें हो गई, रिसोर्सेज कितने, ऑब्जेक्टिव क्या है, और तरीका कार या रास्ता क्या है। अगर ये तीन चीजें आप करते हैं तो इसका मतलब है आप मंसूबा बंदी जानते हैं, यही प्लानिंग है। तो बिजनेस में हर चीज प्लानिंग पे होती है। अब प्लानिंग का जो रास्ता है या तरीका कार है, क्या दुनिया में कोई लोग तरीका कार या रास्ते पे चलते चलते भटक नहीं सकते? तो भाई जब इंसान रास्ते से भटक सकता है, डी ट्रैक हो सकता है, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें उसके लिए जो है वो कंट्रोल भी रखना चाहिए, ताकि अगर कोई बंदा रास्ते से हटे तो हम उस पर कंट्रोल कर सकें, उसको रोक सकेंगे। नहीं भैया रास्ता ये नहीं था, रास्ता ये था, चलो अपने रास्ते पे वापस आओ। अच्छा, तो ये होगा कंट्रोल। अच्छा, जो कुछ भी हम करते हैं आमतौर पे ये करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कोई चीज बेचते हैं, खरीदते हैं, हमेशा हम प्लानिंग, कंट्रोलिंग, इन सब चीजों का रिकॉर्ड भी रखते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई गलती हो तो हम उसे सुधार भी सकें, और ये भी देख सकें कौन सा काम कैसे सर अंजाम पाया है। तो इन तमाम कामों को करने के लिए कंट्रोल भी रखते हैं, रिकॉर्ड भी रखते हैं, मंसूबाबंदी भी करते हैं। फिर भी हम वक्तन फक्तन अपनी परफॉर्मेंस को भी चेक करते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारी परफॉर्मेंस लो, पता लगे कि हम जो सीए करने निकले थे 5 साल में वो अल्लाह ना करे 6 साल में चला गया, 7 साल में चला जाए, तो ये हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। लिहाजा हम अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। ऐसे ही बिजनेस भी अपनी परफॉर्मेंस को चेक करता है कि हमने जो मकासद तय किए थे, क्या हम उस पे सही तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे। और फिर आप जानते हैं कि इन तमाम मालूमात की मदद से हम कई अहम फैसले करते हैं, और फैसले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फैसले को अंग्रेजी में कहते हैं डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग हम करते हैं। तो ये सारी बातें हमने यहाँ लिखी हैं, किताब में भी लिखी हुई हैं, कि भाई सबसे पहली बात हम रिसोर्सेज और टाइम और मेथडोलॉजी या तरीकाकार या कोर्स ऑफ एक्शन तय करते हैं। इस कोर्स ऑफ एक्शन, रिसोर्सेज का जो सारा मामला है, इसे हम प्लानिंग कहते हैं। अब ये रास्ते पे हम चलते हैं, लेकिन चलते चलते ये भी तो हो सकता है हम भटक जाएं, इसलिए हम कंट्रोल नाफिज करते हैं कि अगर हम भटके तो फौरन एक बीप बोले, बीप 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 बीप, और बोले, हम पूछे क्या हुआ, और भाई तुम लेफ्ट मुड़ गए हो, सीधे जाना था, तो हम फौरी तौर पे सीधे चले जाते हैं। जैसे गूगल मैप हमें गाइड करता है कि किधर जा रहे हो, चलो आप इधर से घूम के जाओ। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? रिकॉर्डिंग। हम तमाम चीजें जो बेचते हैं, खरीदते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं। भाई रिकॉर्ड इसलिए रखते हैं कि ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। कल को हमने टैक्स देना है तो हमसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगी जाएगी, और इस चीज का ऑडिट भी होगा। और इसी के साथ साथ हम कंपैरिजन करते हैं, प्लान करते हैं, और अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि क्या हमारी परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू प्लान है या नहीं। अब उसके बाद आ जाती है आखिरी चीज, और वो ये है कि जब तक हमारे पास मालूमात नहीं होगी हम फैसला नहीं कर सकते। जिंदगी के, कारोबार के, दुनिया हकीकत के जितने भी फैसले हैं वो मालूमात की बुनियाद पे हैं। क्या ये गाड़ी खरीदूं या ना खरीदूं, क्या ये कारोबार करूं या ना करूं, क्या ये प्रोडक्ट लॉन्च करूं या ना करूं, ये फैसले हैं। और ये फैसले किस बुनियाद पे हो रहे हैं? इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे। ठीक हो गई जी बात। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इस स्लाइड को मैंने काफी हद तक एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब यहाँ पे मुझे जरूरत है कि मैं आपकी राय का थोड़ा सा ओपिनियन ले सकूं। तो आपकी ओपिनियन दोबारा मांगते हैं। आपकी चैट ऑन है, जो जिस जिसको समझ आ गया जी लिख के एंटर कर दे, मेरी तसल्ली हो जाएगी। सबसे पहले तो ability of a business to obtain money
funds in order to get business off the ground or help in the daily operation of business such as purchase, हम इसको क्या कहेंगे? इसमें से कौन सा ऑप्शन आप पिक करेंगे? जी शाबाश। तो इसमें क्या रेज कर रहे हैं आप बच्चों? तो आप बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तमाम बच्चों का जवाब ठीक है। हैदर है, कोमल है, ये तमाम बच्चे सही आंसर दे रहे हैं कि इसका आंसर जो है वो है कैपिटल रेजिंग एंड दैट्स ऑप्शन ए। दैट्स ऑप्शन ए। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका द आंसर वेयर इज टू इन्वेस्ट इज, कि क्या आंसर देंगे कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। तकाजा ये है कि सी शाउट लोग समझते हैं कि हमें सिचुएशन के मुताबिक इन्वेस्टमेंट करनी होती है और ये हमें इंफॉर्मेशन ही बताती है। चलिए जी अगला सवाल जनाब। अगला सवाल ये है competitive products that are manufactured to sell for profit to a specific audience or industry they are, शाबाश। तो हम क्या कहेंगे? तो हम ये कहेंगे जी बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों। इसमें से कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए? जी तो जवाब आना शुरू हो गए। जवाब जो है वो ये है, बिल्कुल सही आंसर है। डी आंसर बच्चों ने चूज किया एंड करेक्ट आंसर। Priced in a situation a way they generate profit for manufacturer and any reseller, कि मैन्युफैक्चरर रीसेलर के लिए वो कितना मुनाफा जनरेट करते हैं। दूसरी बात compete with other similar product related in industry, तो हमें compete भी करना है, मुनाफा भी कमाना है। generate image and worth of the brand for the company, और कंपनी के लिए हमें वर्थ और ब्रांड भी कमानी है, नाम भी बनाना है। तो हमें डी ऑप्शन पिक करना है। ठीक है जी। तो ये तमाम बच्चों की राय बिल्कुल करेक्ट है कि हमें डी ऑप्शन पिक करना चाहिए है। अगला सवाल। अगला सवाल हमारा ये है आपसे कि जनाब an activity in which we are compare our outcome with standard is known as, एक ऐसी एक्टिविटी जहां हम अपने आप आउटकम को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? तमाम बच्चों को आंसर के लिए अपील है। तो तमाम बच्चे जिसमें और बी आंसर को सही मान लीजिए। तो कंप्यूटर भी आपकी राय से इत्तफाक कर रहा है और कहता है कि बच्चे सच्चे हैं और बच्चे मन के सच्चे हैं, बच्चे दिल के सच्चे हैं, इसलिए सच्ची बातें कर रहे हैं और वो सही कह रहे हैं कि इस वक्त जो है हमें बी ऑप्शन चूज करना चाहिए कि जब हम आउटकम को स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब आउटकम क्या आई है और हमने मेयार क्या सेट किया था, जब दोनों का मुआवजा करेंगे तो ये परफॉर्मेंस ही बनती है और बिल्कुल ठीक बनती है। अब जहां तक सवाल है, यहाँ पे आके एक सेक्शन मैंने मुकम्मल कर लिया अपने। तो चलिए जनाब 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम शुरू करते हैं। ये जो 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इससे पहले वक्ती तौर पर आपकी चैट बंद की गई है, आपने घबराना नहीं है। अच्छा, चूंकि आप जानते हैं कि घबराने से कोई बात नहीं बनती, तो सबसे पहली बात यह है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। देखिए बात यह है, आप समझेंगे सर लेवल क्या होते हैं। देखिए मैं आपसे एक छोटी सी सवाल करता हूँ। देखिए आप, ये आप हैं, ठीक है जी। तो लोग पूछते हैं कि जनाब ये बंदा जो है, ये इसकी तस्वीर है। तो जाहिर है हमने क्लासिफाई किया हुआ है कि अच्छा जी ये नेक से ऊपर इसका जो है फेस है और हेड है। अच्छा जी यहाँ से लेके यहाँ तक इसका स्टमक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेग्स है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के भी 3 लेवल हैं। उसका भी इसी तरह हमने फेस अलहदा रखा हुआ है, पेट अलहदा रखा हुआ है, टांगे अलहदा रखी हुई हैं। तो इन की जो ब्रेकअप है इसको हमने 3 हिस्सों में बांट दिया। जैसे कि आपने भी आपकी तस्वीर बनाई, तस्वीर आपकी अच्छी नहीं बनाई, जरा माजरत चाहता हूँ, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इसी तरह जैसे हमने क्लासिफाई किया है, इसी तरह से हमने ऑर्गेनाइजेशन को भी टुकड़ों में बांट दिया। सबसे पहला जो हिस्सा उसे हमने कहा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। देखिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वो लेवल है जहां पर पे ऑर्गेनाइजेशन के बड़े और बुजुर्ग बैठे होते हैं। कौन बैठे होते हैं? बड़े और बुजुर्ग बैठे होते हैं। तो यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो बुजुर्ग जो है जाहिर है बड़े लेवल पे बैठते हैं, ठीक है जी। अच्छा, और ऑर्गेनाइजेशन के बुजुर्ग आमतौर पर होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बड़े हैं और जाहिर है बड़े बड़े फैसले करेंगे। और बड़े बड़े फैसले जो उन्हें हम कहते हैं तवील मुद्दती फैसले, जिसे आप कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग। क्या कहते हैं जी? लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग का मतलब ये होता है कि ये प्लानिंग कम से कम 3, 5 या इससे भी ज्यादा सालों पर मुहित है।
इससे भी ज्यादा सालों पर मुहित है। दूसरी बात ये है कि जाहिर है ऊपर वाले लेवल पे फैसला होता है कि फैसले अच्छा कैसे फैसले होते हैं, मिसाल के तौर पे आपने प्रोडक्ट कौन सा बनाना है। अच्छा जी, आपने ये प्रोडक्ट कौन सी मार्केट में बेचना है, तो जाहिर है प्रोडक्ट बनाना शुरू करेंगे तो मशीन लगाएंगे, इक्विपमेंट लगाएंगे। अब मशीन और इक्विपमेंट 2 माह के लिए तो नहीं लगती, 6 माह के लिए तो नहीं लगती, ये तो सालों के ऊपर लगेगी। कि मेहरान की एक गाड़ी लॉन्च हुई थी, 10 साल बिकती रही। आल्टो आई है, अब ये अगले 10 15 20 साल बिकेगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ऊपर वाले फैसले हैं ये जरा लंबे अरसे के फैसले होते हैं, ये 3 4 5 या इससे भी ज्यादा सालों पर मुहित होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये फैसले तमाम के तमाम जो है ये ऊपर वाले लेवल पर होते हैं। तो इसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं वो ऊपर वाले लेवल पे होते हैं, गाड़ी कौन सी बनानी है, किस मार्केट में बेचनी है, ठीक है जी। लेकिन जो इसके नीचे वाला लेवल है वो शॉर्ट टर्म फैसले करता है। तो आप कहेंगे सर लॉन्ग टर्म तो समझ आ गई, 3 5 ऐसे ज्यादा साल है, तो आप जरा ये बता दीजिए कि शॉर्ट टर्म जो है वो कैसा होता है। तो जो शॉर्ट टर्म फैसले होते हैं बच्चों, ये आम तौर पे होते हैं 6 माह के फैसले, या मैक्सिमम 1 साल तक के जो फैसले होते हैं, 1 साल तक की जो इम्पैक्टफुल फैक्टर होते हैं उनको टैक्टिकल लेवल पे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर डायरेक्टर बैठे होते हैं, सीईओ बैठा होता है, तो यहाँ पे आम तौर पे मैनेजर्स बैठे होते हैं। और याद रखना है आपने जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के अगर आपने फाइनेंस मैनेजर वगैरह बनना हुआ तो आपको भी टेक्निकल लेवल से काम स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद प्रमोशन होती है और बंदा स्ट्रेटेजिक लेवल पे जाता है। उससे पहले जो है हमें इसी लेवल पर काम करना होता है। ठीक होगी बात। अब अगर आप देखें कि शॉर्ट टर्म फैसले कौन से होते हैं, तो शॉर्ट टर्म फैसले ये होते हैं कि ऊपर तो फैसला हो गया ये प्रोडक्ट बेचना है, इस मार्केट में बेचना है, तो शॉर्ट टर्म फैसले ये हो सकते हैं कि हमें कहाँ पे आउटलेट खोलनी चाहिए और इस आउटलेट के अंदर हमें कहाँ से माल लेना चाहिए। तो इस तरह के फैसले जो हैं ये आमतौर पे यहाँ पे हो सकते हैं। और ऊपर तो ये फैसला होता है प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, कहाँ बेचना है, ठीक है। नीचे टेक्निकल लेवल पे कितना बनाना है, ठीक है। अब आ गया ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल पे जो फैसले होते हैं ये डे टू डे होते हैं, डे टू डे होते हैं। गौर से सुनना है पहले, डे टू डे होते हैं। यानी आपने ये तय करना है कि आज कितने बजे कौन सा बंदा आएगा और काम करेगा, यानी स्केड्यूल बनाना है। तो इसका मतलब ये मामले ये सुपरवाइजर लेवल के फैसले। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डायरेक्टर लेवल के फैसले कौन करता है, तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। डायरेक्टर लेवल के फैसले स्ट्रेटेजिक लेवल के फैसले हैं, लॉन्ग टर्म है। मैनेजर लेवल के फैसले टैक्टिकल लेवल के फैसले हैं, ये शॉर्ट टर्म है। और सुपरवाइजर और वर्कर लेवल के फैसले ऑपरेशनल लेवल फैसले हैं, जो डे टू डे फैसले हैं। और हकीकत में निचले लेवल के लोग जो हैं वो ही इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, वही रॉ मटेरियल को बेचारे पकड़ते हैं, मशीनों में डालते हैं और उससे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो एक दफा रिव्यू हो जाए, जल्दी से रिव्यू हो जाए। सबसे पहली बात यह कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे डायरेक्टर बैठे हैं, सीईओ बैठा है, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वो ये फैसले करते हैं कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सी मार्केट में बेचना है। ये फैसले 3 से 5 साल पर मुहित होते हैं। और जो निचले वाले लेवल पे आते हैं, दरमियाने वाले लेवल पे, वो टैक्टिकल लेवल होता है, ये फैसले करते हैं और जो कि शॉर्ट टर्म होते हैं, 6 माह या 1 साल के लिए होते हैं। ये फैसले करते हैं आउटलेट कहाँ कहाँ बनाए और जो कार इन्होंने कही है वो कार बनानी कितनी है, और ये मैनेजर्स करते हैं। और इसके नीचे आ जाए तो फिर वर्कर और सुपरवाइजर आ जाते हैं। ये डे टू डे स्केड्यूल करते हैं, कौन कितने बजे आएगा, क्या काम करेगा, ये इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, चीजों को मार्केट में प्रैक्टिकली छोड़ के आते हैं, पिकअप पे रख के, ट्रक पे रख के, इसलिए हम इन्हें ऑपरेशनल लेवल कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमें आपकी चैट ऑन करता हूँ और सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये तीनों लेवल आपको समझ आए हैं, आई है। और अगर ये सवालात के जवाब ना दे सके तो फिर मैं समझूंगा कि इनको समझ नहीं आई और फिर मैं इनको सजा दूंगा। उसके लिए मैंने आज एक शतूत की सोटी और उसमें उसाका की टेप नहीं नहीं यार, ये तो क्लास में होता है, यहाँ तो नहीं हो सकता। अच्छा नहीं, तो हम आपके सामने सवाल रखते हैं। सवाल सबसे पहला जो है वो ये है कि जनाब एक दफा रिव्यू कर लीजिए। रिव्यू ये है कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग होती है जो 3 से 5 साल के लिए होती है और इसमें फैसला होता है कि फैक्ट्री कहाँ खोलनी है और कौन से प्रोडक्ट्स बनाने हैं। टेक्निकल लेवल पे मैनेजर बैठे होते हैं, ये शॉर्ट टर्म फैसले करते हैं जो 1 साल पर मुहित होते हैं। आमतौर पे ये फैसला कर सकते हैं कि सप्लायर से माल लेना चाहिए, लेकिन ये फैसला नहीं कर सकते प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, वो तो ये फैसला करेंगे। सप्लायर का फैसला कर सकते हैं सप्लायर कौन सा होगा। और ऑपरेशन लेवल पे डे टू डे काम होता है जिसमें वीकली स्केजुअल, डेली स्केजुअल वगैरह वगैरह इस तरह की बातें होती हैं। और ये अमली तौर पे ऑर्डर भी दे सकते हैं सप्लायर को
टेक्निकल लेवल से इजाजत लेके। अब यहाँ पे आपके सामने सवाल रखते हैं और सवाल ये है कि ऑपरेशनल लेवल इंफॉर्मेशन, इसमें से ऑपरेशनल लेवल की इंफॉर्मेशन की ऑप्शन कौन सी है, ये बताएंगे तमाम बच्चे। और इन बच्चों ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं और इनके वालिदैन भी शिकायत करते हैं कि ये जवाब बहुत देते हैं और जवाब इन्हें देना भी चाहिए। अच्छा बच्चों, तो जवाब ये आया कि रेलेवेंट टू द प्रोडक्शन स्टाफ इन डे टू डे एक्टिविटीज। बिल्कुल ठीक हो गया, ये बच्चे तो समझदार हो गए हैं, वालिदैन की शिकायत सच्ची है, बच्चे जवाब देते हैं और जवाब बहुत ज्यादा देते हैं। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई क्या जी कि स्ट्रेटेजिक लेवल इंफॉर्मेशन, इसमें स्ट्रेटेजिक लेवल इंफॉर्मेशन कौन सी है, बच्चों से पूछते हैं। तो बच्चों में जवाब आने शुरू हो गए। जनाब जो है आपकी तरफ से अजीम है, अब्दुल ईमान है, कोमल है, कायनात है, साइमा है और बख्त ज़हरा हैं, सादी हैं, अली हैदर हैं। इन तमाम बच्चों की तरफ से जवाब आया है और जवाब ये आया है जनाब के जो आपने ऑप्शन ली है इसके अंदर स्ट्रेटेजिक लेवल जो है चूंकि लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है और लॉन्ग टर्म डिसीजन होती है 3 से 5 साल से या इससे ज़्यादा, लिहाजा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और अब हम बात करते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर पूछा गया है कि टैक्टिकल लेवल इंफॉर्मेशन कौन सी है, तो बच्चे अभी जवाब देंगे। जनाब तमाम बच्चों का आंसर बी में है, चाहे सईदा ज़हरा है, चाहे अजीम है, चाहे कोमल है, साइमा है, कायनात है, ईशा है, वसीम साजिद है, नवीद है, बिलाल है, अब्दुल वाहिद है और साइमा खान है, अली हैदर है। तमाम बच्चे कह रहे हैं सर ये मिडिल लेवल का मामला है, टेक्निकल लेवल, और लिहाजा ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग लेंगे। तो मैं इनकी बात को ठीक मांगता हूँ, इससे मुझे समझ आ गया कि इन बच्चों ने तीनों लेवल को समझ लिया है और तीनों लेवल इनको समझ आ चुके हैं। मेरी नज़र घड़ी के ऊपर है, घड़ी के ऊपर एक बज चुका है, घड़ी ने 1 बजाया, चूहा नीचे आया और यहाँ पे हम अपना जो लेक्चर है उसको खत्म कर देते हैं और इन बच्चों से इजाज़त मांगते हैं और फीडबैक मांगते हैं। जाने से पहले सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपको कितने परसेंट आज का लेक्चर समझ आया है, कितना इंटरेस्टिंग आपको लगा है। आप रैंक कर सकते हैं 1 से लेके 100% तक। फरहान 100% दे रहे हैं, हैदर 100% दे रहे हैं, ठीक है जी। सैयदा महक जो है वो भी 100% दे रही हैं, कुछ बच्चे 200% भी दे रहे हैं। मैं इन बच्चों का बड़ा मशकूर हूँ। कुछ बच्चे 4, 5, 6% कम कर रहे हैं, बड़ी ज्यादती वाली बात है, मेरा हलक खुशक हो गया है, मैं बैठ बैठ के फावा हो गया हूँ बोल बोल के। लेकिन ये बच्चे जो है